श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha, Radha Murlidhar Radha Murlidhar Radha, Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha, Jaya Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radha,
सीताराम हरे कृष्ण सीताराम सीताराम हरे कृष्ण प्रभु आपका वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस कट हो रहा है प्रभु। एक सेकंड प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, बाकी तो आ रहा है, पता नहीं, लाइक मुझे तो। सॉरी बोल, मैं पूछता हूँ से। हरे कृष्ण प्रभु, कट हो रहा है प्रभु, वॉइस। या एक सेकंड। या प्रभु, ये ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है प्रभु, बिल्कुल। हरी हरी तो जी, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ चीज। हरी प्रभु आप म्यूट है प्रभु। ओके, हरी बोल। अभी ठीक है? हरी बोल। जय ओम विष्णु पद परमाचार्य पद्महंस परमाचार्य स्तोत्र सिद्ध एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णु पदम परमहंस सत्य स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु श्रील गौरकिशोर बाबा महाराज जी की जय हो। जय ओम विष्णु श्रील सचिदानंद भक्ति विनोद महाराज की जय। जय ओम विष्णु पद्म वैष्णव सर्व ब्रह्म श्रील जगन्नाथ दास बाबा महाराज जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ दास गुरुदास गोस्वामी महाराज की जय। नमस्ते श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ स्वामी कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। आनंद अंडकोटि वैष्णव की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtakir. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भागवत कथा के ऊपर कुछ शब्द बोल सकूं, आपकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। हरि बोल। हम अभी भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 5 और पिछली क्लास में हमने 8 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम श्लोक नंबर 9 से लेके 13 तक पढ़ेंगे, बिकॉज 9 से लेके 13 तक यहाँ पे ब्रह्मा जी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी उत्तर देना शुरू करेंगे। तो आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे वो होगा 9 से लेके 13 तक। हरि हरि बोल। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणैकश्येदं वस्ताते विचिकित्सितमं यम् अहं चोदितः सौम्य भागवतवीर्यदर्शने। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणैकश्यदेशं वत्स चे विचिकित्सितं यद् अहं चोदितं सौम्य भागवतवीर्यदर्शने। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणिकस्य वत्स च विचिकित्सितं यद् अहं चोदितं सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तत्पर श्री प्रभुपाद जी की जय। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह भगवान के शुभ भक्तों का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिसमें यह वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाले हैं। शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वह इस जानकारी को अन्यत्र प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वह यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वह अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल्य सिद्धांत है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हम श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। नानत्रम तव तच्चपि यथा मम भ्रवसि भूः अविज्ञाना परम माता इत्वतत्त्वं योति न हि मे। नानत्रम तव अपि यथा मम प्रभावसि भोः अविज्ञाना परम मता अतएव तम यतो हि मे। नानत्रम तव अपि यथा मम भ्रवसि भोः अविज्ञाना परम मता एतवत्तम यतोमि। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता तो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य कुंभकुंडम तर्क यह बताता है कि कुएं की चारी दीवारी तथा वातावरण में भीतर रहने वाला मेंढक मंडूक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि उसे कोई आश्वासन दे भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका पेट छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मानसिक मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वह विफल होकर एक मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी को सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिक के लिए अकल्पनीय है। जैसा हमें भगवत गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 17 में विदित होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस धीर्य आयु पर मंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों का अनुमति है, वह ऐसे महापुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सर्जन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों में ब्रह्माओं का अपेक्षतः छोटे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी भगवान के समक्ष नहीं है। ओके। नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक है और मुक्ति मिलने के बाद भी वह नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वो केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था और उन्हें ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्त आत्मा कभी ऐसी ब्रह्मात्मक विचार से मोहित नहीं होते, तो फिर नारद जी ऐसे सामान्य अल्पक्ष व्यक्तियों की भांति इस तरह से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा कि मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वह भगवान के नित्य सखा हैं। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति को भगवान की असली स्थिति तथा ज्ञान का अनुमति प्राप्त कर सके। नारद जी के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मुंडकों के लिए एक अच्छा पाठ है कि भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शुद्ध मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहता है, परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्य में कई बार प्रतिपादित किया है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को भी दिग्भ्रमति होनी नहीं चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ। भगवान राम होने के लिए आवश्यकता योग्यता एक अच्छे राजा होना चाहिए, अपितु भगवान होने के लिए
कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे और पात्रों अध्याय से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य है। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्हें राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। येन स्वरोचि स विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथर्कोऽग्निर्यथो सोमो यथरक्ताग्रह तरकः। येन स्वरोचि स विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथर्कोऽग्निर्यथा सोमो यथरक्ताग्रह तरकः। येन स्वरोचि स विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथरक्तो अग्निर्यथो सोमो यथाग्रह तरकः। श्लोक नंबर 11। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सर्जन करता हूं जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी उनकी चमक प्रकट करते हैं। तत्पर श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि के परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रणाम ब्रह्मा जी के कथनों में स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। जिस प्रकार राज्य का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड के सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे। अतएव वे कोई ऐसी अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टता की जटिलताओं के विषय में सही जानकारी प्राप्त कर लें। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्प योगियों की गलत धारणाओं को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह विश्व विदित्वता का सर्जन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से यह भी बात ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभावतो जगद्दिन कोटि विश्व प्रभु सिद्ध विभूमित विभिन्न तमहानिश कलमन्शन्ते विभूतः गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज से ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी है। मैं उन असंख्य लोगों आदि की सृष्टि के कारण है, जो आदि कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं।
यह व्यक्तित्व भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम निरुक्त आयुक्त वैदिक कोश के प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ, प्रथम रूप में। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंतोत्व ब्रह्म ज्योति की सृष्टा है, जिससे इस श्लोक में सौ रोचिशा या भगवान का दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसका निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि प्रभाव संभव होती है। अतएव वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुएं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्व खलिदत ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। हम सर्वस्य प्रभः। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणिता शक्तियां हैं। परम शक्ति विविधता श्रुतियां, जिस प्रकार एक छोटे से वट वृक्ष विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति रोचिशा से सभी प्रकार की बीजों का फैलाते हैं और वे बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्ति द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों का उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज के वृक्ष को रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य की सम्यता प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा और किरणों इत्यादि का कारण है। आकाश में सारे ज्योतिष्क सूर्य की सृष्टि से सूर्य ब्रह्म ज्योति का सर्जन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि का अंतिम कारण भगवान है। श्लोक नंबर 12। तस्मै नमो भगवते वासुदेव्य धीमहि यन्मया दुर्जयः मम वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जयः मम वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जयः मम धयन्ति जगद्गुरुं। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्ज शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप में बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठते हैं, किंतु ब्रह्मा जी का ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या कृष्ण को किसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 में उनका अनुवाद किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में अनित भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं और वह जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर
हर एक को अपनी सनक में मुताबिक ईश्वर मान लेता है। ब्रह्मा जी जैसे उदारदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुक्रों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रतिफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने का मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। श्लोक नंबर 13। विलज्यमान्यस्य स्थायुतम ईश्यपथे अनुमया विमोहितः वियुक्तन्थनु विकथनु मम अहम इति दुर्दयः विलज्यमानस्य स्थातुम ईश्यपथे अनुमयः विमोहितः विकथन्ते मम अहम इति दुर्दयः विलज्यमानस्य स्थातुम ईशः पथे अनुमया विमोहितः विकथन्ते मम अहम इति दुर्गया। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वो ये मैं हूं, यह मेरा है कि विचारों से लीन रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते हैं। अथवा श्री रूपाद जी की जय हो। श्लोकाद श्रीपाद जी की जय। भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलीनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ ही बकवास करते हैं। ये व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों में समर्थित नहीं रहती और सबके अधिक निकृष्ट बकवास है। यह मैं हूं, यह मेरा है। ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानने या उन लोगों को जो पहले से ठगिनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं उन्हें ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतएव वह इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि यह मैं हूं, मेरा यह मेरा है। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर का स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। राधे गोविंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचा कल्पतरुतस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। राधे गोविंद। हरि बोल। इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और जैसा कि अभी हम श्लोक नंबर 12 में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अध्याय 5 के पहले श्लोक में ही, और हम जो ब्रह्म संहिता में हमेशा पढ़ते हैं, और पहला श्लोक है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पे भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये
इस बात की पुष्टि कर दी और इस चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है कि परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो दिव्य शरीर में आदि भगवान है, शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ, उनको वही परमेश्वर है, मैं परमेश्वर नहीं। इस अध्याय में हम देखेंगे, मैं अभी एक्चुअली यहाँ से पढ़ रहा हूँ भागवत सुबोधनी से, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारणों के कारण। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं, जिसके अंदर से अभी हमने पिछली 2 क्लास के अंदर 1 से 8 श्लोक पढ़ लिया। तो उस अध्याय में क्या क्या था, हम जस्ट एक क्विक नजर मार लेंगे उस श्लोक में क्या क्या था। जो पहले 2 श्लोक थे उसमें नारद जी ने 6 सवाल पूछे थे ब्रह्मा जी से, और जो 3 से 6 था उसमें कुछ कन्विक्शंस की बात की। कन्विक्शंस क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। ये आप सब कैसे जानते हैं, आप परम भगवान है आत्मा, आप भगवान को कैसे जानते हैं, इस बारे में हम सब कुछ पूछा उनसे। अभी हम जो आज पढ़ने वाले हैं और 7 से 8 में उनके जो डाउट्स है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उधर वहां पे उनसे प्रश्न किए ब्रह्मा जी से। अभी 9 से जो 13 हम पढ़ेंगे आज, उसके अंदर पहले ब्रह्मा जी नारद जी को धन्यवाद करते हैं कि नारद जी मैं आपको धन्य करता हूँ क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसके बाद वो भगवान जी के क्रिएशन के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं और कौन मूर्ख लोग हैं और कैसे वो भ्रमित होते हैं और हमें भ्रमित कैसे नहीं होना, इसके बारे में ये श्लोक नंबर 9 से 13 के अंदर बताया गया है। और जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो अगले श्लोक से स्टार्ट होंगे, जो कि 14-16 के अंदर प्रश्न उत्तर आएंगे और फिर उसके आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि जो 6 प्रश्न थे वो क्या थे, 6 प्रश्न थे उनके। यद रूपम मतलब उनके लक्षण क्या है, यद अधिष्टम उनका आधार क्या है, यथा शस्त्रम वो सर्जन कैसे करते हैं, यद समस्थितम वो कंजर्व कैसे रहते हैं मतलब संस्थित कैसे रखते हैं, यद प्रथम निश्चय मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, निश्चित रहते हैं, नियंत्रण कैसे रखते हैं, यद चक्र और किस चीज से बने हुए हैं, मतलब इसके बारे में 6 क्वेश्चन थे। अभी जो उसके बाद जो नारद जी ने क्वेश्चंस पूछे और या कन्विक्शंस थे उनके, इसमें भी बताया कि ये सब आप कैसे जानते हैं कि भगवान कौन है, आप परम भगवान आत्मा शक्षित, आपको अकेला दूसरों कोई नहीं, मतलब आपके अलावा आप सबसे पहले हैं, आपसे पहले भी कोई होगा। बिकॉज जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछना कि मतलब आप भी किसी का नाम जप कर रहे हो, मतलब आपसे ऊपर भी कोई है, ये सब क्वेश्चन नारद जी ने पूछे, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन थे इंग्लिश में उसका रूपांतर है यू नो एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ पता है। ये नारद जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप इंडिपेंडेंट है, जो उनको कन्विक्शन है कि आप बिल्कुल अकेले सब कुछ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, यू आर सेल्फ सफिशिएंट मतलब आप आत्मनिर्भर लग रहे हैं मुझे। आई नो नो अदर सोर्स, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, इसके आगे मैं जानता नहीं हूँ। तो क्लैरिफाई माई डाउट्स अबाउट यू, तो आप मेरा ये जो मुझे सोच आ रही है इसको आप दूर कीजिए। और श्लोक में हमने पढ़ा भी था कि नारद जी कहते हैं कि नारद जी मुक्त आत्मा है, वो सब जानते हैं, जैसे अर्जुन को भी मुक्त आत्मा कहा गया, वो भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मा जी बेसिकली हम जानते हैं कि कैसे गर्भोदय विष्णु के नाभि से जो कमल खिला उसके ऊपर उनका प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी पर प्रकट हुआ तो उन्हें पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब उन्हें एक शब्द सुनाई दिया था कि तप कीजिए। तब हम जानते हैं कि हमने सुना है कथाओं में कि ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक अपना तप करते रहे, तपस्या करते रहे, और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें सृष्टि की रचना करनी पड़ी। तो सृष्टि की रचना करने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी को ये भगवान से प्राप्त हुआ कि वो मन से जो मन में सोचते थे वो प्रकट कर सकते थे। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों का प्रकट किया, उनने मन में अपने पुत्र नारद के द्वारा सोचा, नारद जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हुए। और फिर नारद जी ने ये क्वेश्चन पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी हम तो आपको ही देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक
कुछ चीज का ध्यान कर रहे हो, तो अगर आप ध्यान कर रहे हो मतलब आपके ऊपर भी कोई है, वो क्या चीज है उसके बारे में हमें बताइए, जो उनके क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सेम बात आगे भी आती है, या इसका हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि कई लोग मानते हैं शिव जी सब कुछ है, लेकिन हमने काफी बार कथा में सुना भी है और साइंस ऑफ रिलेशन में भी सुना है कि शिव जी भी भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, वो माला जप करते रहते हैं, तो भगवान राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, गोविंद का नाम लेते रहते हैं, और हर उनकी लीलाओं में उनका भाग, वो अपना भाग भी लेते हैं। तो मतलब शिव जी के ऊपर भी कोई है। अभी जो शिव जी है उनका जो प्रकट हुआ है वो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुआ है। तो कोई कह सकता है कि शिव जी ब्रह्मा जी से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है, ये हम सुन चुके हैं, ये हम जानते भी हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं। लेकिन शिव जी का कभी अंत नहीं होता, वो भगवान के नित्य दास हैं और उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा मतलब जो शिव जी को भी पूर्ण मतलब भगवान मानते हैं, या जो ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं, ये गलत है। इनके ऊपर भी कोई है। ब्रह्मा जी, हम जानते हैं शिव जी परम वैष्णव है, और ब्रह्मा जी भगवान के पहले व्यक्ति हैं जो महाजन गिने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कहते हैं आगे, कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि मैं जो करता हूं, मैं क्या करता हूं, आकृति देता हूं, प्रकृति देता हूं और सृष्टि देता हूं, ये मैं बनाता हूं, यस ये मैं क्रिएट करता हूं। लेकिन इसका जो मूल कारण है, या जो मुझे सामग्री चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो मुझे भगवान से प्राप्त होती है। जब मुझे भगवान से प्राप्त होता है तभी मैं इन चीजों का प्रकट कर सकता हूं, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे हम देखिए कि जो भी हम भगवान से, उनको क्या मिलता है, एक मटेरियल, मतलब जो भी हम कहेंगे मटेरियल को, जो भी सामान चाहिए। दूसरा, उनको हमारे जो कर्मों के हिसाब से जो उनको रिकॉर्ड मिलता है, या उनका जो हमने जिस भी कर्म किए होंगे उसका जब मूल जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस, ये बात मैं मानता हूं कि जो मैं क्रिएशन करता हूं उसमें एक विशेषता ये आती है कि दो रूप सेम नहीं होते। जैसे हम मनुष्य में भी देखिए, हम लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन सबका रूप, रंग, इतने तत्व, इतने जीव बना रखे हैं, वो सब अलग अलग है, सबका रूप एक नहीं है। तो ये भी ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी के क्रिएशन है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी को सबको अलग अलग रूप देते हैं कि जो कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही मिल पाता है। तो मूल कर्ता भगवान है, ब्रह्मा जी नहीं है, ये वहां पे बताने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी ये कहते हैं बेसिकली, जीव आत्मा मेरा अंश नहीं है, कि जीव मेरा अंश नहीं है, भगवान का अंश है। कोई भी जीव ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए, वो ब्रह्मा जी का अंश नहीं, भगवान का अंश है। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी भगवान का अंश हूं। अगर मैं भगवान का अंश हूं मतलब मैं भी भगवान का अंश हूं, और सारे कर्मों का फलदाता भगवान, मैं कर्मदाता फल नहीं हूं, भगवान ही है सब कुछ। और मेरी कमाल है। तो वो भगवान जी ये कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं। जो 12 श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं कि मेरी युद्ध में लगी रहे, मतलब वो प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, हे गोविंद, मेरा ध्यान आप में हमेशा लगा रहे और मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं। और यहाँ पे हमने श्लोक में थोड़ा आगे भी देखा था कि एक श्लोक में 12 में आया था, और हम बाकी क्लास में देखते, देव एश गुणमयी मम माया दुरत्यात, मतलब मेरी माया के कारण। और जो श्लोक 12 में आया उसका नाम वो था जन माया दुरत्यात। थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, देव एश गुणमयी मम माया दुरत्यात। और जो श्लोक नंबर 12 में जन माया दुर्जयामा, तो ये दोनों जो माया की बात की है भगवान ने, वो भगवान की माया है, दोनों एक ही है। लेकिन होता क्या है, जैसा यहाँ पे हमने 3-4 श्लोक के अंतर में वो पढ़ा कि कम बुद्धि वाले मुझे भगवान मान लेते हैं, और ये क्यों होता है, माया के कारण होता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक जो हमको समझना है ब्रह्मा जी की, मैं भगवान नहीं हूं। अगर ब्रह्मा जी भगवान नहीं है तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया इंसान भगवान कैसे हो सकता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब जो कि ब्रह्मा, जो हम जैसे हम जीव ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं या ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो हम भगवान कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे
तो आपको सीख क्या मिलती है यहाँ पे कि मतलब अगर ब्रह्मा जी भगवान नहीं है तो हम भगवान हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो आज के युग के अंदर हम जानते हैं या हमने देखा है या हमने सुना है कि कितने लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, तो ये मूर्ख बातें हैं। लेकिन समझने के लिए अगर ऐसा समझें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया धरती पर और वो नंद बाबा और यशोदा के साथ रहे, तो क्या वो भी भगवान नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ब्रह्मा दिया कि मतलब कैंटो 10 के अंदर आता है, ये कहते हैं जो द्रोण और धारा की कुछ कथा है उसके अंदर आता है, दामोदर लीला, ओके दामोदर लीला आता है कि ये दोनों जो द्रोण और धारा है ये भगवान के अंश हैं और उनकी धरती पर आने की इच्छा थी और भगवान को अपना पुत्र पाने की इच्छा थी, उसके अंतर्गत वो धरती पर आए और ये लीला की, जहां पे यशोदा माता ने एक गोपी का रूप धारण किया, गोपी का रूप धारण किया और कृष्ण की सेवा कर रही है। अभी यहाँ पे जो समझने वाली सोचने वाली बात है, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वो सुख नहीं मिला जो माता यशोदा को मिला। दूसरी बात, शंकर जी जो भगवान का हमेशा नित्य ध्यान करते रहते हैं, उनको भी वो सुख नहीं मिला जो यशोदा माता जी को मिला। तीसरा, हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान की चरणों में सेवा करती रहती है, उनके साथ रहती हैं, उनको भी वो सुख नहीं मिला जो यशोदा का माता को मिला। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं यशोदा माता भी जैसे हमको लगेगा कि धरती पे जन्म हुआ उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। यशोदा माता भगवान के एक अंश में आती हैं, उनके साथ नित्य नित्य उनके साथी हैं और उन्होंने धरती पे जन्म लिया था भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए, पुत्र के रूप में पाने के लिए। और हम देख सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर नहीं हो सकते या भगवान के समान कभी नहीं हो सकते, वो हम उनसे हमेशा छोटे ही रहेंगे, कुछ भी कर लें, कितनी भी तपस्या करें, हम भगवान से, हमारे में कुछ गुण हो सकते हैं भगवान के, लेकिन हम भगवान की बराबरी या समान कभी नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु और शिष्य में देखें तो शिष्य हमेशा अपने गुरु से नीचे रहना चाहिए और उनके आदर सत्कार करना चाहिए, वो कभी गुरु के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु के साथ कल्पना करना भी शिष्य के लिए गलत काम है और पाप के समान गिना जाता है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य ब्रह्मा के बराबर भी नहीं हो सकता, कोशिश की जा सकती लेकिन बराबर नहीं हो सकता। जैसे हम एग्जांपल लें कि अगर इंसान ने कोई रोबोट बनाया है, तो रोबोट इंसान का बनाया हुआ है, रोबोट इंसान के समान नहीं हो सकता, वो इंसान से एक स्टेप नीचे ही रहेगा, इंसान को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छे काम कर सकता है, गलत काम नहीं करेगा, जो कहोगे वो करेगा, लेकिन इंसान से हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा उदाहरण हम जैसे देख सकते हैं लाइफ के अंदर भी समझने के लिए, कि जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि ऑटो पायलट आ चुका है। ऑटो पायलट में ये फीचर है उसके अंदर कि आप ऑटो पायलट बटन दबा दीजिए, प्लेन खुद टेक ऑफ कर सकता है, खुद लैंडिंग कर सकता है, आपको पायलट कैप्टन किसी की जरूरत नहीं है अंडर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर भी उसको बनाने वाला इंसान है, और जो इंसान है वो इंसान जो भी मशीन लगी है उससे ऊपर गिना गया है। इसीलिए हमेशा आज भी चाहते हैं कि कंट्रोल जो स्पेशली टेक ऑफ लैंडिंग के अंदर इंसान ही करे, मशीन ना करे, क्योंकि मशीन से ज्यादा इंसान ज्यादा समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको ध्यान रख सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे हमको ये समझना है कि ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, वो नियंत्रण करता, मतलब उनने हमको ये सब सृष्टि में हमारा उत्पत्ति हुई है भगवान की कृपा से, क्योंकि हम भगवान के जीव हैं, तो हम अपने आप को कभी भगवान नहीं मान सकते। और इसके आगे एक क्वेश्चन भी आया था, विष्णु चतुर्वेदी ठाकुर जी ने पूछा, वो ये जो मैंने क्वेश्चन दामोदर लीला का जो बताया था उसके अंदर ये विष्णु ठाकुर ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यशोदा और नंद बाबा को हुआ क्रिएटेड ब्रह्मा, उनको इतनी खुशी मिली जो बाकी लोग को नहीं मिली। तो बेसिकली उसका उत्तर यही था कि जो हमने देखा दामोदर लीला के अंदर कि ये भगवान के अंश थे, यशोदा माता, नंद बाबा जी, राजा दशरथ कह लीजिए, कौशल्या माता कह लीजिए, ये भगवान के अंश थे जिनकी इच्छा थी कि भगवान मेरे पुत्र बने। और वैसा ही आगे हमने श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन इंद्र के अंश हैं, जो कि भगवान का ही अंश गिना गया है उनको, इसीलिए वो भगवान के सखा बन के आए, वो भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते, वो इंटरनल परिकर, ये सब इंटरनल परिकर है भगवान के। तो अगर कोई अपने आप को भगवान मानता है, कोई भी इंसान भगवान मानता है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की स्टेटमेंट के सबसे इट स्टैंड्स रिजेक्टेड, मतलब उसको आप हम उसको समझ सकते हैं कि वो गलत बोल रहा है, वो गलत ही है बिल्कुल। और जो तीसरे श्लोक में देखा कि माया के बारे में बताया है कि माया क्या कर रही है,
और माया माया भगवान की तीसरी शक्ति गिनी जाती है। लेकिन जो हमने श्लोक में देखा कि माया भगवान के सामने कभी नहीं आती, इवन तो भगवान की शक्ति है, भगवान का ही अंश है, लेकिन भगवान के सामने नहीं आती। क्यों क्यों नहीं आती? उसका कारण ये बताया गया है कि जो माया है वो भगवान के शिष्यों को या भगवान की जो आत्मा है जिसमें हम आते हैं, जीवों को, ये सबको ढक के रखती है। और क्योंकि वो भगवान से हमको दूर रखती है, इसलिए भगवान के सामने नहीं भगवान के सामने नहीं थी, भगवान के पीछे रहती है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण जो हमारे ऊपर माया प्रबल रहती है या नहीं है, तो उसका उदाहरण कैसा है कि जब हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान के समक्ष रहते हैं, तो हम ये फील कर सकते हैं या हमको ये, अगर हम ध्यान दें उस बात पे, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि माया का प्रभाव हम पे कम हो रहा है या माया का प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, या माया उस वक्त हमारे पर हमको आकर्षित नहीं कर रही, क्योंकि हम भगवान के सामने हैं। और माया भगवान के सामने कभी नहीं आती, क्योंकि माया जीव और भगवान के बीच में एक दीवार या चादर या बादल बन के बैठी हुई है और हमको उससे ढक के रखती है, हमको भगवान के करीब नहीं जाने देती। तो अगर सवाल ये आता है कि अगर माया हमें ऐसा क्यों कर रही है, हमसे ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये भी माया हमको सीख देना चाहती है धरती पर कि हमें माया दुख देकर ही समझाना चाहती है कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए। और उसके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि कहते हैं ना, माया हमको दो लात मारती है। पहली लात मारती है तो धन लेके आती है, हम खुश हो जाते हैं, और दूसरी लात मारती है तो धन ले जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो माया के काम यही है कि हमको सीख दे कि हम कैसे भगवान के साथ रहें और भगवान को समझ सके और भगवान के करीब जाने की कोशिश कर सके, और अपना जो नित्य संग कहाँ होना चाहिए या हमारा क्या कर्म होना चाहिए उसके बारे में हमको समझाने की कोशिश करती है माया, या माया ये सिखा देती है। तो माया भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भगवान पे ही डिपेंडेंट है। जैसे छाया, हमारी छाया हम पे डिपेंडेंट है। अगर हम धूप में जाएं तो हमारी छाया हमारे साथ रहती है, हमसे अलग नहीं हो सकती। छाया कहीं और जाए, हम कहीं और जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी तरह माया भी भगवान के साथ है, लेकिन भगवान के आगे नहीं आती, भगवान के पीछे रहती है। और जो श्लोका नंबर 13 में दिखाया हमको, 13 के अंदर बता रखा है दूसरी बात कि जैसे सूर्य की किरणें, जब सूर्य किरणें छूटता है तो हम सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी से हमको सब कुछ मिल सकता है या दिखता है हमको। तो ये भगवान की रोशनी के कारण हमको सब दिखता है। इवन चंद्रमा की रोशनी से हमको चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे माया पे हमको खास ध्यान देना है कि माया हमें क्यों ढक रही है और हमें किस ढंग से ब्लॉक करने की ट्राई कर रही है। माया चाहती है कि हम हमेशा ये कहें ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है, लेकिन हमको इससे बाहर आना है। इसका उदाहरण जब मैं कथा सुन रहा था सर्वभौम प्रभु जी की, तो उन्हें बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, जब उन्हें कोई भी भक्त कहता था कि महाराज हमारे घर पे आइए, आप भगवत गीता कीजिए, भागवतम कथा कीजिए, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कभी नहीं कहते थे कि अच्छा मैं आऊंगा और कथा करूंगा। वो हमेशा यही कहते थे कि जब जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। वो जाते थे कथा करने के लिए, लेकिन वो हमेशा भगवान की इच्छा कहते थे। और उसी तरह कई महात्मा, कई महाराज ये भी कहते हैं, जैसे आप उनको अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाएंगे तो वो ये कहेंगे जैसी राम की इच्छा, राम की इच्छा से हमने प्रसाद खाया। वो अपनी इच्छा से कभी नहीं कहते, वो भगवान की इच्छा से ही करने की बात करते हैं कि भगवान की इच्छा थी इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ और देखेंगे कि जो श्लोक नंबर 9 में हमने देखा था, श्लोक नंबर 9 के अंदर, कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए नारद के इस प्रश्न से कि आपने जो प्रश्न पूछे वो पुलकित हो गए कि ऐसा प्रश्न क्यों ना पूछे। और उसके में यहाँ पे लिखा है, शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय के में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होता। मतलब अगर मैं समझ गया तो मैं तुष्ट नहीं होऊंगा, अपितु मैं इस जानकारी को अन्य तक प्रकाशित करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी हमको यही समझाते हैं, गुरु महाराज भी यही समझाते हैं कि जो हमको ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मिला है, ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बुक के रूप में, कथा के रूप में, और डिवोटी उसको टेम्पल लेके आना है ताकि वो सब भगवान के भक्त बने और ये ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये वो यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। और मतलब अर्थ ये है कि कौन भगवान है ये सबको पता लगना चाहिए। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये सबको प्रफुल्लित करे और
ये सबको मिलना चाहिए बेसिकली। और इसके कई उदाहरण को जैसे मिलते हैं, जब रामचरितमानस के अंदर माता पार्वती, जब उनका विवाह हुआ शिव जी के साथ में, हम जानते हैं सती के रूप में क्या हुआ था, पार्वती के रूप में जब उनका विवाह हुआ, और जब उनने पहली बार शिव जी से कहा कि मुझे भगवान राम की कथा सुननी है, और शिव जी इतने प्रसन्न हुए, इतने कहते हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए, और उन्होंने पहला श्लोक क्या बोला, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। तो शिव जी जानते थे कि जो पार्वती जो उनसे पूछ रही है, इस कथा का, इस ज्ञान का कितना फायदा है, और ये कितना खुशी देने वाला है, और इसकी कितनी जरूरत है हर एक इंसान को। दूसरा सेम चीज हमने ऐसी बहुत सारे उदाहरण है, जब अर्जुन का युद्ध हो रहा था, जब युद्ध की स्थिति में खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो उस वक्त भी जो ज्ञान दिया अर्जुन, तो जैसा हमने भी पढ़ा कि भगवान के नित्य परिकर हैं, साथ में रहते हैं, उनको सब पता था। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, वो हम सब के लिए पूछा है कि हमको इस चीज का ज्ञान मिले। सेम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा है, उनके लिए नहीं हो रहा है, एक 1 to 1 नहीं हो रहा, वो पूरी जीवात्मा के लिए हो रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली श्लोक नंबर 9 के अंदर यहाँ पे दिखाया कि ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न हुए नारद जी के ऊपर, उनके प्रश्न के ऊपर, कि इससे सबका भला होगा। श्लोक 10 में हमने देखा कि तुमने मेरे विषय में जो कुछ पूछा है वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब कोई इन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, वो मुझसे परे परम सत्य रूप में, तब तक मेरी शक्ति कार्यप्रभु निश्चित रूप से मोहित हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनको कि कैसे जिस मनुष्य पे ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, वो यही समझेगा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर भी कई चीज ऐसी होती है कि कोई आदमी अगर अच्छा काम करे तो हम उसी को भगवान मानना सोचते हैं कि यार ये भगवान का रूप ही है, हम ऐसा कई बार कहते हैं। और कोई गलत बात नहीं है, बेसिकली गलत उस पॉइंट से नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 12 महाजन हैं जो भगवान को पर अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि 12 महाजन कौन है, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, बलि महाराज, भीष्म पितामह, जनक जी, सुखदेव गोस्वामी, भक्ति प्रहलाद जी, मुनि कपिल, यमराज जी और मनु महाराज, ये जो 12 महाजन गए हैं, उसके अंदर ब्रह्मा जी भी आते हैं, जिन मतलब इनको भगवान का पूर्ण ज्ञान है। और वो भी कहते हैं कि कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति, कभी कभी भौतिक दृष्टि शक्तिशाली व्यक्ति जो वास्तविक ईश्वर के ज्ञान का अभाव में, क्योंकि आप शक्तिशाली भी हो और ज्ञानी भी हो, लेकिन कृष्ण भगवान का ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, वो कई लोगों को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। ऐसे भौतिक मूल्यांकन के धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी को सर्वोत्तम सीमा तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी ब्रह्मा जी को ही अल्टीमेट मान लेते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, सीमा तक पहुंच जा सकते हैं। जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी सर्वोच्च जीव है इस ब्रह्मांड के, और उनकी आयु भौतिक वैज्ञानिक के लिए अकल्पनीय है। और हम जैसे जानते हैं कि अगर कोई किसी को कहा जाए, तो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, यूएसए का हो या किसी और डेवलप्ड कंट्री का हो, अगर उसको ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा जी कैसे काम करते हैं, उनकी क्या आयु है, तो डेफिनेटली वो ब्रह्मा अगर सुनेगा तो क्या बोलेंगे, भौचक्का जैसा रह जाएगा। और आगे कहा गया कि नारद जी मुक्त आत्मा उसमें एक है, और मुक्ति मिलने के बाद ही वह नारद कहलाए, जो कि नारद जी मुक्त आत्मा है और मुक्तिवादी नारद कहलाए। उसके बाद भी वो एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ताकि हम समझ सके, हम जीव इस बात को समझ सके। और यहाँ पे जो श्लोक नंबर 10 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जैसे परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्य में कई बार प्रतिपादित किया है कि जो भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बात हमने 2-3 बार रिपीट भी की, लेकिन ये बात जानना जरूरी है हमको कि कोई भी, ब्रह्मा जी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। और उसके बाद उदाहरण दिया था भगवान रामचंद्र का, कि हम भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन अगर हम भगवान राम जी के कुल में देखें, इक्ष्वाकु आए, राजा दशरथ आए और कई महान राजा उनके कुल में आए, लेकिन ये सब के सब कोई भी भगवान नहीं कहलाए गए, ये सब के सब अच्छे राजा कहलाए गए। यहाँ पे उदाहरण युधिष्ठिर महाराज का भी दिया गया, कैसे युधिष्ठिर महाराज एक अच्छे राजा थे, लेकिन वो कभी भगवान नहीं कहे गए, वो एक अच्छे राजा के रूप में गिने गए। तो हर एक को भगवान नहीं कह सकते जिनमें सारे गुण हो। और श्लोक नंबर 11 के अंदर मूल रूप से हमने क्या देखा,
कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि के परम वक्ता है, सत्ता है, ठीक नहीं है। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार श्लोक नंबर 11 में कहा गया है। और यहाँ पे हमको समझने को ये मिला कि ब्रह्मा जी यहाँ पे जो उन्होंने लिखा, जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय, मतलब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता, उसी तरह ब्रह्मांड के सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक सेकंड जस्ट। अच्छा, ब्रह्म ज्योति के बारे में कहा गया था यहाँ पे, जो कि श्लोक अध्याय 14 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। तो कई लोग ब्रह्म ज्योति को आधार मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि जो चल रही है ब्रह्म ज्योति के आधार पर चल रही है, लेकिन यहाँ पे वो भी क्लियर कर दिया है ब्रह्मा जी ने कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार है। तो जो भी इस धरती पे या संसार में हो रहा है उसका आधार भगवान ही है, भगवान के अलावा और कोई नहीं। और अंत में 11 श्लोक के अंत में यह कहा गया कि यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा या किरणों आदि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टि से सूर्य ब्रह्म ज्योति का सर्जन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि का अंतिम कारण भगवान है। तो यहाँ पे वापस वही बात कही है कि ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मा जी, जितने भी सब कारण है उनका कारण भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं। और श्लोक नंबर 12 में जो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन कारण भगवान को नमस्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। और ये उनने श्लोक भी पढ़ा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंद गोविंद सर्व कारण कारणम। और जो श्लोक नंबर 13 में था उसमें दो हिस्से थे। एक तो माया के बारे में था कि माया कैसे हमें ढक लेती है और माया हमें भगवान से दूर क्यों रखती है, जबकि भगवान माया की, मतलब माया भगवान की शक्ति है। और हमें कैसे यह मैं हूँ, यह मेरा है, इससे हमें बाहर आना है। इस विचारों से लीन रहने के लिए कारण थी बातें। और हम कैसे अपना समय वेस्ट करते हैं ये माया के जाल में फंस कर। तो ये 13 श्लोक के अंदर उन्होंने बताया गया था, ये 13 श्लोक में बताया गया इसके बारे में। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ये 5 श्लोक के अंदर जो मुख्य बातें हमने समझी आज वो ये कि पहले तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए नारद के प्रश्न से। और उसके बाद में उनने कैसे बताया कि कैसे गलत आदमी मुझे भगवान मानते हैं, माया कैसे अपना काम करती है और भगवान ही परम ब्रह्मा है, सर्व कारण कारणम। ये सब हमने इसके अंदर सीखा, इसमें देखा और सुना इसके बारे में। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। इस साथ मैं क्लास को विराम देना चाहूंगा। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। हरे कृष्ण प्रभु। हरि हरि बोल जी। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने कोशिश की कि कुछ पढ़ के सुन के कुछ बात कर सको इसके बारे में। हरि हरि बोल, इन 5 श्लोकों के ऊपर। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि हरि। बहुत अच्छे प्रभु आप समझाया। हरि हरि। जो मुख्य बात आपने बहुत अच्छे जो उसमें उदाहरण प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिए हैं, उन उदाहरण से कि कैसे ब्रह्मा जी जो है जो पूर्ण शक्तिशाली है वो भी पर बार बार ये कर रहे हैं कि हाँ मेरे में जो शक्ति है मैं दिखता हूँ पर मूल शक्ति तो भगवान से है। तो ऐसे ही हम सब, तो यही ज्ञान होना चाहिए। भगवान ही सिर्फ एक भगवान है, तो बाकी कोई भी जो जिनके पास में किसी तरह की शक्ति होती है तो जो एक समस्या है कि वो या तो अपने को भगवान मानने लगते हैं या हम आम लोग जो है किसी को भगवान मानने लगते हैं। तो ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो पूर्ण परमेश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी सब उन्हीं की शक्ति है। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सारे आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। हरि बोल सूर्य का और बाकी। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और टिप्पणी करना चाहते हो तो कृपया कहें कुछ। हरे कृष्ण। नहीं तो फिर हम जो है अभी श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा। हरे प्रभु जी ले जो। हाँ पूछिए मत।
जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी जैसे ब्रह्मा जी के बारे में सब कुछ हमको पता है, कृष्ण भगवान से डायरेक्ट ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पर हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी के मंदिर देखते हैं, पर हम ज्यादातर ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं देखते हैं। और ऐसे हमको बोला नहीं जाता कि जैसे ब्रह्मा जी, मतलब सारी देवी देवताओं के लिए हमारे तरफ से इंस्ट्रक्शन है ना कि ये भगवान जी को पूछो, ये देवता जी को पूछो, लेकिन ब्रह्मा जी का हम कहीं भी नहीं देखते प्रभु जी, तो ऐसा क्यों है? मेरा क्वेश्चन में ऐड करूंगा प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन ऐड करना है इसके अंदर। हम देखते हैं कि मैं क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आंसर मिल सकता है हम सबको। कि मैं देखता हूँ कि जैसे नारद जी ले एग्जाम्पल, तो नारद जी ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, तो उन्होंने भागवतम लिखा, पूरा सब सारे ग्रंथ लिखे। नारद जी को मिलने के बाद भी रामायण का भी अवतरित हुआ, रामायण भी लिखी गई, कैसे वो डाकू थे, कैसे उन्होंने रामायण लिखी। तो नारद जी इतने एक्टिवली इन्वॉल्व है हर चीज के अंदर, कहीं भी देखे तो नारद जी के थ्रू सब कुछ हो रखा है, हम जितने उदाहरण देखते हैं, पर नारद जी का मंदिर नहीं है कहीं भी, क्यों ऐसा? ये प्रश्न मेरे अंदर भी था कि नारद जी को भी कोई मंदिर कभी देखा नहीं कभी हमने। हरे कृष्ण। तो नारद जी तो भगवान के साथी हो गए ना, इसलिए वहां बद्रीनाथ में है हमेशा सतत। हरि बोल। और पर ये प्रभु माता जी जो प्रश्न पूछ रही है कि ब्रह्मा जी के क्यों नहीं है, ये तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, पर हमको ये पता है कि क्योंकि जब हम पुष्कर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर, ब्रह्मा जी के बहुत ही कम जगह पे जो है मंदिर है, तो उसमें से एक स्थान पुष्कर है जहाँ ब्रह्मा जी को जो है का पूजन होता है। पर जीव तत्व हैं तो शायद पहले, पर ये सब मैं अपने मन से ही कह रहा हूँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है। तो इसलिए क्योंकि वो, हाँ, तो क्या पता ये हो रहा होगा कारण, क्योंकि ये सनातन है हमारी जिंदगी, हजारों हजारों साल से जो भी देवी देवता स्थापित हुए, जो उनके लिए जो वेद में वो की गई कि उनकी पूजा कब किस देवता को किस समय पे पूजा कर सकते हैं, या वो किसका अधिशासी देवता है, ऐसे सब जो वेद में कहा गया है, तो क्या है उसमें ब्रह्मा जी के लिए क्यों नहीं है, वो मुझे ज्ञान नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर ये सब हमें है कि जैसे माता जी कह रही है। हरे ये कृष्ण सब वही प्रभु। कहना चाहते हमें आदेश दे तो मैं इस पे कथा मुझे पता है ब्रह्मा जी के बारे में, तो अगर आदेश दे तो मैं 1 मिनट व्यक्त कर सकूं। प्लीज बोलिए प्रभु। अच्छा, तो प्रभु जी एक्चुअली जब ब्रह्मा जी का शादी हुआ था तो उनकी पत्नी का नाम था माता सावित्री। तो एक बार क्या है, ब्रह्मा जी जो है संसार की भलाई के लिए पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया था, और इस यज्ञ में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बैठना था, लेकिन उनकी जो पत्नी सावित्री है वो थोड़ा देर से पहुंची वहां पे। तो जब एक टाइम होता है कोई भी पूजा करने के लिए, एक मुहूर्त होता है, तो जो टाइम था उसी टाइम में पूजा करने से पूरे संसार की भलाई होनी थी। तो ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई करने के लिए वहां से एक स्थानीय जो एक लोकल वहां पे एक ग्वाला बाला थी उससे उन्होंने शादी कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। तो यज्ञ में बैठने के बाद में पूजा संपन्न किया करके वहां से, तो जब उनकी एक्चुअल पत्नी सावित्री जी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के बगल में कोई एक अन्य स्त्री बैठी है और जो यह यज्ञ कर रही है। तो यह देखते हुए उनको अत्यंत ही क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण बिना विचार किए हुए ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि संसार उन्हें भुला देगा और देवता होने के बाद भी कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। तो सावित्री अपनी पत्नी का यह क्रोध देखकर यज्ञ में मौजूद सभी जितने देवी देवता थे उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी ने तो संसार की भलाई के लिए यह पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया था, तो आपका समय पे आप नहीं आ पाए, वो पूजा का मुहूर्त खत्म हो जाता, इसके लिए उन्होंने ये शादी कर ले। इसलिए हम आपसे अनुनय करते हैं कि ये अपना श्राप वापस ले लें। पर एक बार कोई श्राप देता था तो कोई ये संभव नहीं है कि वो श्राप को वापस किया जाए। तो इसके लिए सावित्री ने कहा कि जब धरती पर जो केवल पुष्कर है वहां ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और उसके अलावा उनकी पूजा कहीं और नहीं होगी, और कोई दूसरा भी मंदिर बना तो उसका विनाश हो जाएगा। तो ऐसा कहने की वजह से आज पूरे भारत में खाली एक ही मंदिर है पुष्कर में वहां पे, उसके अलावा दूसरा मंदिर नहीं है, क्योंकि ये श्राप है कि अगर कोई दूसरा मंदिर बनता है तो उसका विनाश हो जाएगा। तो यह इसका एक पुराना दंत कथा है। तो प्रभु जैसे ही घटना आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, हो सकता है माता जी को मेरा
अब उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। ये स्टोरी तो कभी पता नहीं थी हमको। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा आलोक प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दीना हरे कृष्णा प्रभु। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। ये प्रभु जी ने बताया, एक तो कथा ये है ही कि वो श्रापित सरस्वती की थी, सावित्री नहीं सरस्वती, और उन्होंने उत्पत्ति की थी, वो गायत्री थी। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से गायत्री की उत्पत्ति की थी वहीं पे पुष्कर यज्ञ करते के समय। तो गायत्री भी ब्रह्मा की पत्नी है। और ब्रह्मा जी स्वयं नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा हो। जो गुह्य बात है कि ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे स्वयं कि मेरी कहीं पूजा हो। तो एक इसलिए ये भगवान की व्यवस्था कहिए जो उनको श्रापित कराया गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की, एक संध्या नाम की स्त्री की उत्पत्ति की। और वो संध्या इतनी खूबसूरत थी कि उस संध्या के प्रति ही ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। और ब्रह्मा जी जब आकर्षित हो गए तो उसके पीछे जाने लगे, उस संध्या के पीछे भागने लगे। तो जब देखे कि ब्रह्मा स्वयं संध्या का पहला नारी तत्व उन्होंने संध्या को प्रकट किया और उससे इतना मोहित हो गए उसकी सुंदरता को देखकर कि ब्रह्मा जी खुद संध्या के पीछे भागने लगे। तब उनके जो पुत्र थे भृगु आदि, शिव जी ने उनको, भृगु आदि ने बहुत लज्जित किया कि आपको शोभा नहीं देता ऐसा, आप स्वयं सृष्टि के क्रिएटर हैं और आप ऐसा विचार, आपका ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। तो शिव जी, एक जगह ऐसा मान्यता है कि शिव जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। तो शिव जी ने गुस्से में ही, ब्रह्मा जी को 5 मुख था पहले, 4 मुख नहीं 5 मुख था। संध्या हर दिशा में भागने लगी तो ब्रह्मा जी जिस दिशा में भागने लगी उस दिशा में अपना मुख प्रकट कर लिया। तो संध्या जब चारों दिशाओं में भागने लगी तो ब्रह्मा जी ने 4 मुख चारों दिशाओं में बना लिया उसको पीछा करने के लिए। लेकिन फिर संध्या ऊपर की ओर भागने लगी तो ब्रह्मा जी ने ऊपर भी अपना एक मुख बना लिया उसको पीछा करने के लिए। तब शिव जी को क्रोध आया तो शिव जी ने, जो जैसा कि भागवतम में वर्णन है, शिव जी ने क्रोध में ब्रह्मा जी को उस मुख पे वार किया, हमला किया। इसलिए वो उनका मुख कट गया। और कट गया तो वो कभी मुख उनके हाथ से छूटता ही नहीं था। ब्रह्मा जी, शिव जी के हाथ में वो मुख हमेशा बना रहे। तो वही बाद में वो शिव जी वो मुख ब्रह्म कपाल में बद्रिक आश्रम में जाके हाथ से गिरा। इसलिए ब्रह्म कपाल है बद्रिक आश्रम में, जहाँ पितरों को सब तर्पण करते हैं जाके, ब्रह्म कपाल। तो ये एक भागवतम में ऐसी कहानी है कि शिव जी 5वां जो मुख था वो ब्रह्मा जी का 5वां मुख का वो किया था, कट किया था, लेकिन वो हाथ में सटा रह गया, वो गिरता ही नहीं था। बाद में वो जाके प्रायश्चित करने के लिए भी जा रहे थे तो ब्रह्म कपाल में बद्रिक आश्रम में थोड़ा सा आगे, वहाँ पे जाके वो हाथ से उनको मुक्ति मिला, मतलब हाथ से गिरा हो। तो वहीं पे आज भी तर्पण किया जाता है। तो ऐसी भागवतम में मान्यता है कि इसलिए ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस शरीर का तुरंत त्याग कर दिया और भगवान की प्रार्थना की कि मैं खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूँ। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी 3 बार शरीर का त्याग किया है, तो भगवान ने के आदेश पे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर नया शरीर धारण करके फिर सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई। तो ये ऐसा भागवतम का मान्यता है। और ब्रह्मा जी खुद नहीं चाहते थे कि उनकी कहीं भगवान के सामने पूजा हो, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद लीलामृत। यस प्रभु, हरे कृष्णा। वैसे जो दीनानाथ प्रभु ने कहा ना, आज सुबह की क्लास में भी प्रभु जी ने जब ब्रह्म कपाल तक को संध्या का बारे में मतलब थोड़ा संकेत दिया था जो प्रभु जी ने कहा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप ये भागवतम में है, भागवतम में वर्णन है, कथा मैं सुना हूँ, स्थल पुराण में वर्णन है कि ब्रह्म कपाल का महात्म क्या है। तो शिव जी का हाथ से जो ब्रह्मा जी का मुख छूटा, इसलिए वो ब्रह्म कपाल कहा गया। ब्रह्मा का कपाल वहां पे गिरा वो शिव जी हरि बोल, हरे
हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। यस प्रभु। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो अभी जो अध्याय चल रहा है आवश्यकता की है महत्वपूर्ण घड़ी, तो पिछले हफ्ते हमने जहां छोड़ा था वहीं से आगे लेता हूं। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक प्रकार की तैयारी थी। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने में अनेक वास्तविक कार्य की, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में उन्हें और अधिक विश्वास हो गया। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकें चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पश्चिमी संसार में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वे आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोगों के पास उनके आध्यात्मिक शून्य को भरने के लिए ऐसा कुछ न था। यदि भागवतम को वे अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, तो भी बैक टू गॉडहेड को चलाने में वे लगे रहे और उपलब्ध पुस्तकों की पांडुलिपियों से उद्धरण लेकर उन्हें लेख के रूप में उसमें देते रहे। लेकिन कभी कभी वे नए लेख भी लिखते और छापते। रिलेवेंट इंक्वायरी प्रासंगिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा कि भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करने में हम केवल मानव जाति को बचाने का विनीत प्रयास कर रहे हैं। यह प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है, भगवान के धाम में लौटने का यह प्रयास उस सतयुग का आरंभ है। ए गॉडलेस सिविलाइजेशन एक अनीश्वरतावादी सभ्यता नामक लेख में भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू की इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने टिप्पणी की कि यद्यपि निस्संदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, लेकिन यदि आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक धूर्तों की संख्या धार्मिक धूर्तों से बढ़ जाएगी। धार्मिक धूर्तता के प्रति पंडित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वह चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुधार लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी और यह सुधार राजनेताओं के पूर्ण सहयोग से ही संभव था। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने उस पत्र में उद्धरण किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भगवत गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था, परंतु जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने बैक टू गॉडहेड के पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके इस पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ भी उन बहुत से मठों और मंदिरों की तरह ही था जो उनके लिए सिरदर्द हो रहे थे। भक्तिवेदांत स्वामी का पंडित नेहरू पर अभियोग यह था कि वे समझते थे कि कोई आध्यात्मिक संस्था जनता का धन संग्रह करने का तनख्वाह खाना है और बाद में उस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। किंतु वे उन तथाकथित साधुओं का समर्थन करते थे जो सामाजिक सेवा करते हैं पर आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसलिए कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यद्यपि वे ब्राह्मण और पंडित है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गुण है। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि वे भगवान या कृष्ण शब्द से भयभीत ना हो, पर हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण हरेक के हितैषी है और हरेक की सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख के अंत में सहकर किया है कि अनैतिक व्यवहार भारत के देवालयों तक ही सीमित नहीं है, वरन वे सारे संसार के भौतिकतावादी सभ्यताओं में समान रूप से व्याप्त है। विशेषकर युवा वर्ग के विक्षोभों का उन्होंने उदाहरण दिया कि 1960 और 70 के दशक के बीच सर्वत्र व्यापक हो रहे थे। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करे, क्योंकि नास्तिकतावादी सभ्यता में जबकि मठों और मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ऐसे ही लोग दूसरे नामों से यूरोप और एशिया में राजनेताओं के सिरदर्द का कारण है। उन देशों में बेलगाम छोकरे जिन्हें इंग्लैंड में टेडी बॉयज, अमेरिका में रेबल्स
विदाउट कॉज, जर्मनी में हाफ स्ट्रॉन्ग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन और रूस में स्टाइल बॉयज कहा जाता है। नास्तिकतावादी सभ्यता की ही यह उपज है और सारे सिरदर्द का मूल कारण यही है। उनका पूरा उपचार जरूरी है। छिप्पीवाड़ा में भक्तिवेदांत स्वामी ने दिनचर्या लगभग वैसी ही थी जैसे कि केशी घाट पर। अंतर केवल यह था कि यहाँ बैक टू गॉडेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र थे। कृष्ण पंडित वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद सूर्योदय से पूर्व किया करते थे, लगभग 3 बजे रोज। आरंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वे नित्य प्रति अनुवाद का यह कार्य करते, तब अपना भोजन स्वयं बनाते, भोजन की सामग्री में इकट्ठी कर लेता था। कभी कभी वे मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मांगते। कभी कभी वे तीसरे पहर 5 से 6 बजे भी नहाते थे। हर दिन वे टाइप करते और भागवतम का स्वयं पाठ करते और मंदिर के दर्शन को जाते। तब वे बाहर चले जाते थे और कभी कभी तीसरे पहर 2 या 4 बजे वापस लौटते। उसके बाद वे टाइप करते और बैक टू गॉडहेड का प्रूफ देखते और उन्हें कहीं भेजते। वे इस तरह सारे कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। भक्तिवेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित एक संस्कृत और बंगला में भागवत तथा उनके एक बृहन संस्करण से करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी। उनके अनुवाद का एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखित संस्कृत को रोमन अक्षरों में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी पर्याय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करते और अंत में अंग्रेजी में श्लोक का तात्पर्य देते। परंतु अपनी ओर से तात्पर्य देने के पहले वे आचार्यों की टीकाएं देख लेते, विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, विजयध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। जिस परियोजना में वे लगे थे उनके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया था। भागवतम में 18,000 श्लोक थे। पहले स्कंद के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे और दूसरे स्कंद के 10 अध्यायों को 2 खंड चाहिए थे। 9वें स्कंद तक इस तरह हो सकता है कि 30 खंड हो जाए। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, उनके लिए 20 खंड चाहिए थे। सब कुछ मिलाकर 12 स्कंद थे और इस तरह खंडों की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि 5 से 7 वर्षों में ये कार्य पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं श्रील प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति स्वरूप कार्य पूरा कर लूंगा। उन्होंने निर्णय किया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के साथ किया जाए, जो भागवत के आदर्श प्रचारक थे। पाठक को भागवत की सर्वोत्तम रूप में परखने सराहने का अवसर भगवान चैतन्य के व्यावहारिक जीवन में उनके दर्शन से मिलेगा। भगवान चैतन्य ने भागवत को जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता उनकी ही इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति द्वारा संसार के हर कोने में किया जाए। भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवत और निर्मल पुराण भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण कहते थे और हरे कृष्ण मंत्र के साथ श्रीमद् भागवतम के पठन और श्रवण को वे ईश्वर के सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में भाष्य के आधार मानकर भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठों में दी। उन्होंने भगवान चैतन्य के दिव्य भाव समाधि का समकालीन विद्वानों से उनकी दार्शनिक टीकाओं का और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का वर्णन किया। भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन
और उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से इतिहास की वर्तमान संकटापत्र घड़ी में जोड़कर वर्णित किया। आवश्यकता की इस निर्णायक घड़ी में मानवता की सहायता वैदिक साहित्य और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम से हो सकती है। हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में कुछ विशाल भवनों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरक्षित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्शों को नहीं नष्ट कर सके। संस्कृत भाषा इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों को संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक श्लोक के निकट पहुंचते पहुंचते भक्तिवेदांत स्वामी भागवतम के उद्देश्य में खो गए। उन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया कि केवल भागवत ही कलयुग के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा कर सकता है। इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्कृति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से ही परम भगवान कृष्ण का गुणगान सुना जाए। लीला प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। गया प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी